welcome to all of you. Today we will discuss about the structure and function of eyes. This is the second topic of your specific toxicity test from your paper. First of all, uh, before we read to specific toxicity test of eyes, we have to read the structure and function of eyes. Okay, so let's see. This is a structure of our eyes. The eyes are our body's most highly developed sensory organs. In fact, a far larger part of the brain is dedicated to vision than to hearing, taste, touch, or smell combined. Okay, and this is a structure of eyes. This is eyelid. This is the pupil, is a black hole. Sclera is a white portion of our eyes, and the iris is a colored part of our eyes. Okay, this is the structure of eyes. Our eyes are having two component. One is external and other is internal. The external component include sclera, conjunctiva, cornea, iris, and the pupil. And the second internal component are lens, retina, optic nerve, aqueous humor, and vitreous humor. Okay. Now let's see one by one. Here is a structure of eyes. First of all, zoom it. This is the front portion of eyes. Conjunctiva, iris, lens is the most important part of eyes, pupil, cornea. Cornea is a transparent and front part of our eyes which cover the pupil and iris. Conjunctiva, okay, and sclera, it is a white portion of eyes. There is two chambers in the eyes. One is a anterior chamber and second is a posterior chamber. Okay, posterior chamber is known as vitreous body and anterior chamber are known as aqueous humor. Okay, and posterior chamber are known as vitreous humor. Now the posterior region of the eyes is a choroid. This is a choroid. It is retina and this is a macula. Macula region is having a fovea centralis. Fovea centralis, it is a small depression in the retina where the visual acuity is very high. Okay, मैकुला ये रीजन दिख रहा है, यहाँ पे स्मॉल डिप्रेशन दिख रहा है, ये क्या है? फोविया सेंट्रालिस है. फोविया centralis. Okay, and this fovea centralis is located in the center of macula and it is responsible for the high acuity vision because it is densely saturated with the cone photoreceptor cells and it is responsible for the sharp central vision. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कौन सेल्स ज़्यादा होती हैं जिसकी वजह से क्या है, ये sharp central vision के लिए responsible है and which is necessary in the human for the reading, driving and any activity where the visual details is of primary importance. Okay, and this is the optic nerve and it is an optical disc, yeah, optic disc. Okay, this is the structure of our eyes. Now the front part of human eyes. Front part of human eyes means external part of human eyes are discussed. First of all, the sclera. Sclera is a white visible portion of eyes. It is made up of dense connective tissue and protect the inner parts of eyes. The main function of sclera is support the eyeball and provides attachment for the muscles. Sclera, ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको वाइट वाला, ये पोर्शन क्या है? स्कैलरा है. ओके, एंड दैट कवर ऑल ऑफ द आई बॉल एक्सेप्ट द कॉर्निया, ये ध्यान दीजिएगा. इसके बाद सेकेंड आपका सेकेंड जो एक्सटर्नल पार्ट है आई का वो क्या है? कंजक्टिवा. कंजक्टिवा इट लाइन्स द स्कैलरा. A thin clear layer of skin
line the inner surface of eyelids and cover the front surface of eyeball except the cornea. ठीक है, it secrete the mucus. Basically what is the function of conjunctiva? uh, it provides lubrication. That means it keeps our eyes moist, clear, and provides lubrication by secreting the mucus and tears. Okay, now the cornea. Cornea is a clear lens in front of eye. Cornea is a transparent front part of our eyes which covers the pupil and the iris. The main function of cornea is to refract the light along with the lens. जो इसका फंक्शन है यहाँ पे देखिए है allows for the passage of light into the eyes and it also focuses the light. ये आपका यहाँ पे पूरा कवर किया हुआ रहता है, पूरे पोर्शन को जो है ये कॉर्निया ट्रांसपेरेंट और जो है थिन लेयर होती है जो कि आइस को फ्रंट पे कवर की रहती है. ट्रांसपेरेंट कवरिंग ऑफ फ्रंट ऑफ द आइस. ओके, नाउ द ये जो फोटोसेप्टर सेल्स है ये आपका रेटिना का पार्ट है. इसको आप रेटिना में पढ़ेंगे. ठीक है, रॉड एंड कोन सेल्स, इसे आप यहाँ छोड़ दीजिए. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ पार्ट of eyes is iris. Iris is a pigmented colored portion of eyes and the function is to basically control the diameter of pupil according to the light source. ये क्या करता है, जो iris है वो colored part होता है आइज का. ये जो colored part दिख रहा है वो है and control the light entering. ठीक है, light entering को ये control करता है. It controls the amount of light entering the eyes. जैसे यहाँ पे आपका है इरिस है, इरिस ही कंट्रोल करता है प्यूपिल को. ओके, नाउ द प्यूपिल. प्यूपिल इज़ अ ब्लैक होल. ब्लैक होल ये जो आपका है लेवल देखिए, ब्लैक होल को हम बोलते हैं प्यूपिल. प्यूपिल इज़ अ स्मॉल अपर्चर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ इरिस. द मेन फंक्शन ऑफ प्यूपिल इज अलाउज लाइट टू एंटर एंड फोकस ऑन द रेटिना. ठीक है, जो मेन जो फंक्शन है प्यूपिल का वो क्या है, इट अलाउज लाइट टू एंटर एंड फोकस ऑन द रेटिना. प्यूपिल साइज इज कंट्रोल्ड बाय द इरिस मसल्स. यहाँ पे देखिए प्यूपिल की दो कंडीशंस है. एक आपका है प्यूपिल आपका जो है एक्सपेंशन और दूसरा है प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका प्यूपिल एक्सपेंशन कंडीशन है. व्हेन द आई नीड्स मोर लाइट टू एंटर व्हेन द कंडीशन ऑफ डार्क द प्यूपिल गेट लार्जर अलाउिंग मोर लाइट टू एंटर द आइज. यहाँ देखिए प्यूपिल क्या हो गया आपका एक्सपेंड कर गया काफ़ी, क्योंकि लाइट जब कम होगी, जब डार्क होता है तो हमें बेटर देखने के लिए हम प्यूपिल को क्या कहते हैं एक्सटेंड कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, जैसे ताकि लाइट मैक्सिमम एंटर करे और हमें डार्क में भी अच्छे से विजिबल हो दिखे. ठीक है, तो यहाँ पे ये प्यूपिल एक्सपेंशन कंडीशन है और यहाँ पे प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन. व्हेन द आई नीड्स लेस लाइट टू एंटर, दैट मीन्स इट इज़ अ ब्राइट कंडीशन, the pupil get smaller allowing less light to enter the eyes. यहाँ पे देखिए pupil क्या हो गया, कॉन्स्ट्रक्ट हो गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया. ओके, नाउ द इंटरनल पार्ट ऑफ द आइज. इंटरनल पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल लेंस. लेंस इज लोकेटेड इन द आइज. इट इज ट्रांसपेरेंट बाइकॉन्वेक्स एंड द लेंस इज अटैच टू द सिलरी बॉडी बाय द लिगामेंट. ठीक है, लेंस किससे अटैच होता है आपके ciliary body से through the ligament. And the main function of lens is the along with cornea, it refract light so that it focuses on the retina. In other words, we can say that it focuses the light rays that pass through it and retina दोनों से in order to create clear image of object that are positioned at various distances. Okay, ये आपका फर्स्ट इंटरनल पार्ट है आइज का. सेकेंड इंटरनल पार्ट आपका रेटिना है. रेटिना इज़ अ इनर मोस्ट लेयर ऑफ आइज. इट इज़ अ लाइट सेंसिटिव एंड एक्ट एज अ फिल्म ऑफ कैमरा. इट इज़ एक्ट एज अ फिल्म ऑफ कैमरा. इट इज़ कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल्स. फोटोरिसेप्टर सेल्स आर रॉड एंड कोन सेल्स. ठीक है, अब मेन फंक्शन क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द लाइट वेव्स टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल. ठीक है, ये जो है लाइट को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. और रेटिना में दो टाइप के फोटोरिसेप्टर सेल्स होते हैं जो मैंने आपको ऊपर दिखाया था, उसको आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे.
photoreceptor cells. In the retina there are two types of photoreceptor cells. ठीक है, these are rod and second is cone. This is a rod and this is a cone. Okay, rod cells are sensitive to dim light. Rod cells are sensitive to dim light, present everywhere in the retina except the fovea. आपको भी याद होगा, मैंने एबव स्लाइड में बताया था कि फोबिया सेंट्रलिस में केवल कोन सेल्स होती हैं और इसीलिए जो है वहाँ पे कोन सेल्स सबसे ज़्यादा होती हैं और इसीलिए जो है वहाँ पे विजुअल एक्टिविटी क्या होती है, हाई होती है. ठीक है, और वहाँ पे रॉड सेल्स नहीं होते हैं. इट अलाउज डीम लाइट विजन एंड पेरिफेरल विजन. 125 million rods in the average retina. Now the second photoreceptor cells is cone. Cone is sensitive to bright light, clustered near the center of retina, यानी कि फोविया सेंट्रलिस पे कोन सेल्स सबसे ज़्यादा होती हैं, वहाँ डेंस होती हैं. एंड डिस्टिंग्विश द कलर्स एंड अलाउ sharp vision. 5 million cones in the average retina. Now the third part is optic nerve. रेटिना पढ़ा हमने, रेटिना में दोनों सेल्स पढ़ेंगे, फोटोरेसेप्टर सेल्स पढ़ेंगे. उसमें आप रॉड एंड कोन्स को पढ़ेंगे, जो मैंने आपको बताया अभी. वो रॉड एंड कोन्स वो ऊपर की स्लाइड में है, उसको लेंगे. ठीक, रॉड एंड कोन्स. एंड देन जो थर्ड पार्ट है, इंटरनल पार्ट है इसका, वो क्या है, ऑप्टिक नर्व. ऑप्टिक नर्व, इट इज़ लोकेटेड एट द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द आइज. ऑप्टिक नर्व कैरी ऑल द नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम द रेटिना to brain for perception. Okay, optic nerve carry all the nerve impulses from the retina to brain for perception. This is the function of eyes. This is the function of optic nerve. The bundle of over 1 billion nerve fibers that carry the visual masses from retina to the brain. Retina का function मैंने आपको बताया कि क्या है. Basically retina का जो function है, it converts the image into the electrical nerve impulses for the visual perception by the brain. और optic nerve क्या करता है, ये जो है that carry the visual masses from retina to brain. Now the optic nerve, यहाँ पे जो है, जो मेन फंक्शन है ऑप्टिक नर्व का, ये भी आपका ऑप्टिक नर्व का डायग्राम है ये. that transmit electrical signal from retina to brain. इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है, दो आपके हैं बताया था मैंने चैम्बर, एक एंटीरियर चैम्बर, दूसरा पोस्टीरियर चैम्बर. तो एंटीरियर चैम्बर जो है आपका क्या है, एक्वस ह्यूमर होता है. इट इज़ अ वाटरी फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस. क्या फंक्शन है इसका, इट नरिशेस द आइज एंड कीप इट इनफ्लेटेड. ठीक है, अ क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है एंटीरियर चैम्बर में, जिसे हम एक्वस ह्यूमर बोलते हैं. ये क्या करती है, नरिश करते हैं. ठीक है, नरिश करते हैं लेंस को, कॉर्निया को, और हेल्प करते हैं रिफ्रैक्ट लाइट ऑन टू द रेटिना. ठीक है, एक्वस ह्यूमर नरिशेज द लेंस एंड कॉर्निया एंड हेल्प रिफ्रैक्ट लाइट ऑन टू द रेटिना. नाउ द पोस्टीरियर चैम्बर आर फिल्ड विद द विट्रस ह्यूमर एंड इट इज़ अ क्लियर जेली लाइक फ्लूइड इन द पोस्टीरियर चैम्बर. सपोर्ट द लेंस, फंक्शन क्या है मेन विट्रस ह्यूमर का, इट सपोर्ट द लेंस एंड रेटिना and keeps the eyes from collapsing. मतलब एक मिनट ये कह सकते हैं, we can say that main function is to protect the eyes and maintain its spherical shape. जो आइज का जो शेप है ना, उसको ये मेंटेन करते हैं, मतलब कोलैप्स होने से बचाते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो एड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आइज. ओके, नाउ द ब्लाइंड स्पॉट, इसे भी आप देख लीजिए. ब्लाइंड स्पॉट आपका आइज का है, वो आपका बेसिकली जो है वो आपका है एब्सेंस ऑफ कोन्स एंड रॉड्स एट द ऑप्टिक डिस्क. जो ऑप्टिक डिस्क है वहाँ पे क्या हो रहा है, कोन रॉड सेल्स नहीं है, उसे हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट. नो विजन इज पॉसिबल हेयर, सो दैट्स वाई इट इज रिफर्ड टू एज ब्लाइंड स्पॉट. ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक डिस्क. ऑप्टिक डिस्क जगह पे ही ब्लाइंड स्पॉट है, जहाँ पे आपका जो है अ पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व एंटर द रेटिना. जहाँ पे a point where the optic nerve enters the retina. एंड ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कोई भी कोन्स और रॉड
सेल्स जो है नहीं है, इसलिए वहाँ पे कोई विजन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो ये आपकी आइज़ का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है पढ़ेंगे स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी टेस्ट अबाउट द आइज़। आइज़ का जो भी स्पेसिफिक टॉक्सिसिटी टेस्ट है, जो भी इम्पैक्ट है डिफरेंट केमिकल्स का, उसको हम स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।